आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost. यस, अच्छी तरीके से देखना। वैसे आपको ये पता भी होगा, these are extracted from total cost. We can calculate average cost and marginal cost from total cost when we produce a given level of output. जब हम एक output level produce करते हैं, there is involvement of total cost, and from that very total cost we can draw out or calculate average cost and marginal cost. पहले हम उठाएंगे what is average cost. Yes. Average cost, generally it is per unit cost. Yes, sir. Per unit cost of output. Per unit cost of output. ठीक है. If our output Q is, for example, 1000 units, we produced 1000 units, and the total cost for these 1000 units is, for example, 5000 rupees. So for producing 1000 units, we spend 5000 rupees. Average cost is total cost divided by Q. That is total cost divided by level of output produced. That is 5000 divided by Q is 1000. Average cost is 5 rupees. Average cost is 5 rupees. 5. It is per unit cost of output produced. Output produced. Produce. Or we can say when we divide total cost by the quantity produced or quantity of output produced or quantity produced, we get average cost. We get average cost. That is, average cost is always equal to quantity produced divided by, sorry, total cost divided by quantity produced. Produced. Yes, sir. Total cost divided by quantity produced. Total cost divided by quantity produced. Or it is TC, Yes, total sir. cost divided by Q. Total cost divided by Q. Q. So when total cost is divided by quantity produced, quantity Reduce it. हमने spend कितना किया on a given level of output, and that total cost is divided by quantity produced, we get the average cost. We get the Average cost. Or we can say average cost is sum total of what? Average fixed cost and average variable. Average fixed cost and average variable cost. Yes, sir. That is, ये दूसरी इक्वेशन इसकी बन गई, average cost AC is equal to AFC plus AVC. Average fixed cost and average variable cost. ठीक है? Yes, sir. तो और एक चीज हम लिख सकते हैं इसमें, इसकी जो शेप है, the shape of average cost curve is, क्या है इसकी शेप? U shaped. Yes, average sir. cost curve is always U shaped. Paper. First. Yes, sir. U shaped. Yes, sir. ठीक है. Average cost हमने यहाँ डिस्कस किया है, it is sum total of two costs, so it has two components. When we sum up those two components, we get average cost. So average cost has two components. Yes, sir.
इसके दो औलाद हैं समझो, हैं? दो इश्यूज हैं इसके, हैं? Yes, sir. तो एवरेज कॉस्ट हम लिख सकते हैं, इट इज Yes, मेड अप sir. ऑफ टू कॉस्ट्स, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और हम ये लिखेंगे Variable cost. एवरेज कॉस्ट इज मेड अप ऑफ two costs, that is average fixed cost and average variable cost, that is Variable cost. fixed cost and average variable cost. सही। Yes, अब हम पहला उठाएंगे व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी। जनरली हम एवरेज कॉस्ट के लिए ऐसे लिखते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए लिखते हैं हम एएफसी, एएफसी। C. Then what is average fixed cost? What is average fixed cost? Shabash. Every fixed क्या है cost average? is the fixed cost per unit of Total fixed cost per unit of output. Average fixed cost. हैं? yes sir हम ये लिखेंगे per unit of fixed cost. It is Per unit of fixed. per unit of fixed cost fixed cost. Average fixed cost is fixed cost per unit per of unit output. It is fixed cost per unit of output. Fixed cost per unit of output Output. producer. हर चीज पे कितना फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हर यूनिट पे कितना फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। जनरली हम लिखते हैं इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट divided by quantity of output producer. yes Quantity producer. Quantity of output producer. Reduce. Average fixed cost is fixed cost divided by quantity producer, or that is average fixed cost is equal to total fixed cost divided by q divided by quantity producer. Yeah, Q. Quantity producer. Or it is TFC divided by Q. TFC divided by Q. Q. Now the next is average variable cost. Average variable cost. Average variable. Variable. It is variable cost per unit of output. per unit of output yes sir. Variable cost per unit of per unit of output. TVC divided by Q. Or it is total variable cost divided by quantity quantity producer. Quantity reduced or average variable cost is equal to total variable cost divided by Q. TVC divided by. So these are the formulas for calculating average fixed cost and average variable cost. Average fixed cost and average variable cost. अब मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मुझे लग रहा है पहले मार्जिनल कॉस्ट भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर एक ही टेबल बनाएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है सर। पहले मार्जिनल कॉस्ट, ये याद रह गया? व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यस सर। ये आसान सी चीजें हैं ना? ये ना साल चीज।
Yes, sir. Average cost is per unit cost, total cost divided by Q, divided by quantity producer. Fixed Yes, cost, average yes, fixed cost is fixed cost divided by quantity producer, and average variable cost is variable cost divided by quantity producer. So Reduce. the next important cost is marginal cost. Marginal cost. What is this marginal cost? पता है आपको marginal cost क्या Additional है? cost. हैं? Output. Additional cost. total cost. हाँ, additional cost. Cost. Additional cost as a result of increase in output or extra output or extra quantity producer. Yes, sir. जब हम extra quantity produce करेंगे उस पे कितना cost आ गया या total cost पे कितना add हो गया, Yes, sir. the addition made to the total Increase. cost. An extra quantity of a good is produced. An extra quantity of a good is produced. Reduce. Reduce. Is simply addition made to total cost when extra quantity of a good is produced. When Yes. extra quantity Yes, sir. Good is produced. of a good is produced. Extra quantity of a good is produced. हमारे टोटल कॉस्ट पे कितना इजाफा हो गया, उसमें कितना इजाफा हो गया जब हमने किसी चीज की एडिशनल क्वांटिटी, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया. किया. ठीक है. और Yes. हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट Cost. Yes, sir. ड्यू टू चेंज इन Output. quantity produced or quantity of output Yes, sir. produced, output producer, quantity produced. Change in total cost due to change in quantity produced, change in total cost. That is marginal cost बराबर है Delta change TC. in total cost Divided by change in quantity to. produced. Yes, sir. Quantity producer, or it is delta TC. Yes, sir. Delta TC divided by delta Q. और अभी आपको समझ आता है? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Simply ये है. और एरो एक और हम ये इसकी वो क्या कहते हैं इक्वेशन बनाते हैं. These are different equations for marginal cost. Margin MC is equal to delta TC divided by delta Q. Delta Q. और एक है वो आपको याद भी है, पता भी है. क्या है वो? MC is equal Sir, जो to हम उसमें लिखते थे. हाँ, yes, sir. total cost at nth Total unit cost of of n minus total cost of n minus 1. N minus 1. n minus 1. Total cost at nth output level minus total cost at n minus 1 level of output. ठीक है? Yes, sir. यही होता है change in total cost as a result of change in. ये हो गया change in total cost divided by change in this quantity. Yes, और sir. हम ये भी कहते हैं marginal total cost is sum of marginal cost. Total cost is जब हम marginal cost को sum करते हैं तो हम ये में बनता है total cost. That is total cost is summation of MC. Total cost is sum of Yes, sir. marginal cost. Clear? Yes, sir. जो यहां भी शेप दे दूंगा बे, marginal cost curve is also U-shaped. ये भी U shape की है. Yes, sir. Is also U-shaped. ये भी U shape. जब हम कर्व्स बनाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे ये U shape क्या होती है. यहां आप बता सकते हो U shape क्या है?
Yes, sir. First decrease होता है, decrease then lowest then increase होता है. हाँ Marginal cost. हाँ, मार्जिनल कॉस्ट ये ऐसे करो होती है, एवरेज कॉस्ट की भी तो और मार्जिनल कॉस्ट की भी होती है। Sir. अगर यहाँ हम देख रहे हो ना, नजर आता है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? Yes, sir. अगर ओएकस पे हम क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हम करते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस, और ओवाई पे हम मार्जिनल कॉस्ट दिखाएंगे, तो इसकी कर्व ऐसी बनेगी, ठीक है? Yes. Yes. ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि U shape जो हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा पहले मार्जिनल कॉस्ट फॉल होता है, Yes. Yes. फिर ये इंक्रीज होता है। Then lowest पे पहुंच जाता है. हाँ, लावेस्ट के पहुंच जाने के बाद फिर इंक्रीज Increase हो जाता है directly at rate. Increasing rate. ठीक है? Yes, Yes, sir. इसी तरह उसकी जो ये एवरेज कॉस्ट की, एवरेज कॉस्ट करूँ की इसी तरीके की है, यू शेप, वो इस तरह है। Yes, sir. एवरेज कॉस्ट करूँ, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये भी पहले डिक्रीज होती है, Yeah. कांस्टेंट भी रह सकती है, फिर इंक्रीज होती है। फिर Yes, sir. ये चीज ठीक है। अच्छा, अब मसला है ये मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट इस स्टेज तक ये फॉल होते हैं, है ना? Yes, sir. फिर एक स्टेज आता है ये इंक्रीज होता है। Yes, sir. मुझे बताओ ये जो स्टेज है, ये स्टेज, ये कैसे हम कह सकते हैं? हाउ इट फर्स्ट फॉल्स देन इट इंक्रीजेस, व्हाई marginal cost first falls then rises and makes a U shape and have a U shape. और नादिया, रीजन क्या है? What is the reason behind it? अगर आपको मैं पूछूंगा क्वेश्चन, why marginal cost as well as average cost first falls, what is the reason behind it? In the beginning, when output level increases, why this marginal cost and average cost falls? What is the reason behind it? शाबाश। बेसिकली कॉइन के दो रुख होते हैं। कॉइन अगर आप लोगे उसके दो रुख होते हैं, है ना? Yes, sir. दो होता है। Yes, sir. एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। इसी तरह यहाँ भी इकोनॉमिक्स में जब प्रोडक्शन और कॉस्ट हम पढ़ते हैं, इसके ये उसके दो रुख हैं। Hello there. कॉस्ट पढ़ने से पहले आपने क्या पढ़ा? आपने प्रोडक्शन पढ़ी। Yes, sir. प्रोडक्शन पढ़ी ना? जो Yes, sir. आपने प्रोडक्शन में लॉज पढ़े हैं उसी का आईना ये है कॉस्ट। जब आप इनपुट्स अप्लाई करते हैं, यू गेट द प्रोडक्शन। जब आप इनपुट्स Yes, sir. you get the production, you pay to the inputs, you pay to the inputs, that becomes the cost. जो वो देते हैं इनपुट्स हमें वापस, उसको कहते हैं प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन हमने पढ़ी है, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, आपको ध्यान अगर होगा तो पहले हम वहां देखते थे, जब भी इनपुट्स हम इंक्रीज करते थे पहले, तो वो Yes, sir. मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। Production increase. Yes, sir. मार्जिनल प्रोडक्शन पहले Increase Increase. होती है, increasing rate. yes increase, that is total production increase at increasing rate. मार्जिनल प्रोडक्शन जो है जब वो इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। At increasing rate. Yes, sir.
जब हमें प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है उसका मतलब है हमारा कॉस्ट डिक्रीज होता है। Yes, sir. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है एज एप्लीकेशन ऑफ मोर एंड मोर फैक्टर्स, सप्लाई Yes, जितना sir. ज्यादा जितना ज्यादा हम इनपुट और सप्लाई करते हैं, जो उनकी मार्जिनल जी, प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, तो Yes, कॉस्ट sir. हमारे Yes, sir. डिक्रीज हो जाते हैं। यस सर होता है। So production and costs are the two opposite sides. Right. यस उनकी रिलेशन Like- अपोजिट है। अगर प्रोडक्शन में हमने पढ़ा है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट उसका अपोजिट है। मार्जिनल प्रोडक्ट का Yes, sir. अपोजिट क्या है? Decrease. मार्जिनल Margin कॉस्ट। cost. इसका मतलब है अगर Costs. प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ती है, हमारे कॉस्ट्स कम होते जा रहे हैं। Decrease. Yes, sir. नहीं, Reduce. प्रोडक्शन फायदा है, कॉस्ट नुकसान है। जब Yes. फायदा ज्यादा है उसका मतलब है नुकसान कम है। अगर प्रोडक्शन कम है तो हमारे कॉस्ट्स ज्यादा है। ज्यादा, yes, sir. ये होता है ना वो शीशा होता है ना, वो उसको हम Yes, sir. दो पोल्स होते हैं ना उस लॉग के, उस पे अगर एक बैठती है वो ऊपर चढ़ती है, दूसरा नीचे जाती है। अगर Yes, ये sir. ऊपर जाती है ये नीचे जाती है Yes, sir. ऑफ दिस शेप। अगर ये ऊपर हो गई तो ये नीचे जाएगी, अगर ये ऊपर हो गई Yes. ये नीचे जाएगी। ये है ना, नीचे. same is the case here. In production we study marginal cost which first increases as application of more and more inputs, तो हमारा cost जो है वो decrease होता है। That is why in this first stage we see marginal product increasing and marginal cost decreases. Yes, sir. Decreases. ये जो बीच का वाला स्टेज है इसमें हम ये भी जज कर सकते हैं हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ये थोड़ा Yes, sir. कांस्टेंट रहता है ना, हमारा जो Yes, sir. मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है। Yes, sir. जब लेट स्टेज में as we Increase. apply more and more inputs और size of plant Input. increases, हमारा Yes, जो sir. मार्जिनल प्रोडक्ट Increase. है वो डिक्रीज होता है, Yes, marginal cost marginal increase. cost increase होता है। So it is due to the laws of production, due to the Yes, laws sir. of production। और दूसरा साइड यही भी है, जब हम पहले इनपुट ज्यादा लगाते हैं, Marginal product. इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, Yes, sir. और वी कैन से उनको क्या कहते हैं वो, हाँ, इकोनॉमीज ऑफ दिस बेनिफिट्स जो होते हैं वो ज्यादा पहले आते हैं, फिर डिस इकोनॉमीज आते हैं। पहले इकोनॉमीज आते हैं फिर डिस इकोनॉमीज आते हैं। दैट इज व्हाई ड्यू टू इकोनॉमीज दिस costs decrease and due to dis economies this cost increase। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। So ये है reason why marginal cost first decreases then increases, it is due to the fact that marginal product first increases and marginal cost decreases, and as we go on increasing the supply of factors of production and our production as increases, the marginal product decreases and marginal cost increases। अब मैं ये करूंगा, ये टेबल इसका Schedule. हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए टेबल है, टेबल में है करेंगे ये। अगर हमारा ये क्वांटिटी ऑफ आवर है, Yes, sir. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आवर, और हमारा है ये फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट। इसमें हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, इसमें हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। हमें एवरेज कॉस्ट है तो हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालेंगे, हम फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। Yes, sir. और एक चीज मैं आपको होमवर्क रखूंगा,
we have for example 0 1 2 3 4 5 6 total cost 10 है यहाँ 20 28 for example 34 38 42 तो ये है 48 Yes, sir. ओके तो निकालो इससे एवरेज कॉस्ट क्या है यहाँ 10 divided by 0. ये क्यू है ये टोटल कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू 10 डिवाइड बाय 0 ये क्या है 10 डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी है Yes, sir. 20 डिवाइड बाय 1 इट इज 20 28 डिवाइड बाय 3 ये क्या बन गया डिवाइड बाय 2 14 34 डिवाइड बाय 3 34 डिवाइड बाय 3 11.3 11.3 कुछ आता है 38 Yes, डिवाइड बाय 4 9.5 Yes, sir. डिवाइड बाय 5 ये 8.4 कुछ आता है 48 डिवाइड बाय 6 ये आएगा 8 6. अब Yes. निकालो ये मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में कितनी चेंज आ गई व्हेन हमारा आउटपुट चेंज हो गया इट इज डेल्टा टीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू हमारा टाइम कुछ कम रह गया है अच्छा आपको नजर आता है Yes, sir. यही किस ठीक है अच्छा मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करो ये है 10 यहाँ डेल्टा टीसी में कितनी चेंज आ गई है डिवाइड बाय 1 है यहाँ 1 आ गई चेंज Yes, यहाँ sir. कितना है 8 28 माइनस दिस 20 34 माइनस Yes. 28 ये हो गया 6 है इसमें कितनी चेंज आ गई 4 की 4 यहाँ कितनी चेंज आ गई 4 की चेंज है 4 यहाँ कितनी चेंज आ गई 6 हम और भी ये बढ़ा सकते हैं 7 8 9 फॉर एग्जांपल यहाँ 6 की चेंज आ गई यहाँ हम 8 की चेंज करेंगे 56 हम करेंगे कुछ हैं 10 12 12 15 की 8 यहाँ आप खुद ही निकालो आप है अब है फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट बताओ क्या है इतने में अगर क्यों ये है टीसी ये है टोटल कॉस्ट ये इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट आप निकालिए कितना है फिक्स्ड कॉस्ट Divided by यहाँ आपका टेस्ट है थोड़ा जल्दी करो यहाँ मैं देखूंगा आपका टेस्ट Sir, 10 divided by 0. 10 डिवाइड बाय 0 हाँ ठीक वो कितना हो गया 10 Infinite, sir. Sir, infinite. वो rational number थोड़ी 0 इसका denominator. अच्छा ये फिक्स्ड कॉस्ट की ये मुझे बताओ ये है फार्मूला फिक्स्ड कॉस्ट की फार्मूला ये है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू Oh, sir. फिर एवरेज No, कॉस्ट sir. और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या फर्क है एवरेज कॉस्ट में भी यही फार्मूला है ना टीसी डिवाइड बाय क्यू बताओ कितना आएगा फिक्स्ड कॉस्ट ये गलत है
फिक्स्ड कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, टोटल कॉस्ट क्या है फिक्स्ड कॉस्ट राजिया? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट। ओ क्या आ गया बकवास, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। Yes. टोटल कॉस्ट हाँ माइनस हाँ माइनस यहाँ तो Yes, अभी sir, वेरिएबल yes. कॉस्ट है ही नहीं, तो निकालोगे कहाँ से? हाँ Yes, यस sir, सर टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तो वेरिएबल कॉस्ट भी है ही नहीं, लाओगे कहाँ से? इसी में से निकालना तो है। फिर पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालना। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, नहीं कहाँ निकलेगा वेरिएबल कॉस्ट भी, जब तक ना फिक्स्ड कॉस्ट अच्छा निकालो, नहीं वो भी निकला जब तक फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। जब तक तो फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगा। नादिया Yes, sir. बताओ ना, Sir, variable cost मत है। वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो टोटल कॉस्ट Yes, है sir. ना, आउटपुट भी Yes, है ना, sir. फिक्स्ड कॉस्ट Yes, निकालो, sir. निकालो फिक्स्ड कॉस्ट। वो अकल है आप लोगों को, जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है उस पे क्या कॉस्ट है, वो सारा फिक्स्ड कॉस्ट है, याद नहीं? Sir, जो भी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कॉस्ट है वो सारा फिक्स्ड कॉस्ट है। 0. 10 minus 0. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. वाह हो गया 10 माइनस 0, क्या बकवास करते हो? जो भी जीरो लेवल पे जीरो आउटपुट पे जितना भी कॉस्ट टोटल कॉस्ट है वो बन गया फिक्स्ड कॉस्ट, Yes, sir. क्योंकि उस टाइम आउटपुट बना ही नहीं। बना ही नहीं है। Yes, Yes, sir. sir. कल ही पढ़ा ना, एक दिन हो गया। अब बताओ दूसरे स्टेज पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है आप फिक्स्ड कॉस्ट? क्या है डेफिनेशन फिक्स्ड कॉस्ट की? 20. कॉस्ट फॉर फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, और और Those ये कि ये cost- डिफरेंस बिटवीन वो भी नहीं पता चलेगा, वो भी कहाँ, वो हाँ अपना दोस कॉस्ट जो चेंज नहीं होते विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अब क्या बन गया, अब बताओ? सर ये 10 ही रहेगा। क्या नहीं रहेगा, क्या हो गया आप जाते हो ना, यही बात है। Cost. ये याद रखना, जितना जीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट होगा वो सारा फिक्स्ड कॉस्ट है। अब वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितना है? अगर दूसरी Variable मीटिंग पे cost मैं पहले ही बताऊंगा, अगर कॉस्ट टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। fixed cost. टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, Fixed cost. क्या वेरिएबल कॉस्ट है? अब यस बताओ सर क्या है वेरिएबल कॉस्ट? 10 minus 10 0. 10 माइनस 10, 10. 10 माइनस 10 Zero. 0, हाँ 20 minus 10 10. 10, 10. हाँ 28 माइनस 10 18, 20. 38 माइनस 10 34 minus. 34 माइनस 10 इट इज 24, ये है। Yes. हाँ यस सर तो 38 माइनस 10 28, 42 माइनस 10 32, 48 माइनस 10 38। 8. तो समझ आ गया, अकल आ गई? Yes, sir. यस Yes, सर sir. इसका खुद ही ये कैलकुलेट करना, इसका खुद ही कैलकुलेट करना, यस ठीक है? सर अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, Yes, sir. क्वेश्चन दे दूंगा, फाइंड आउट Find out. average fixed cost and average variable cost, average fixed cost and average Average variable. variable Average cost. अगर हमारे पास क्यू क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, चलो Yes, sir. यही उठाएंगे, 0 10 1 20 3 2 28 3 34 4 38 और क्या है 5 42 6 48 48 7 56 8 68 9 83। इसमें आपको निकालना है क्या क्या? Fixed cost and average variable cost. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
लेकिन Yes, तब sir. तक नहीं चलेगा जब तक आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ लिखोगे, फिर आपको ये आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। समटाइम्स कभी खाली टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी होती है, आपको निकालना होता है ये चीजें। कभी फिक्स्ड कॉस्ट दिया होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना होता है। कभी वेरिएबल कॉस्ट दिया होता है और क्वांटिटी, और ये एवरेज कॉस्ट। ये आप खुद करना। अब हमारा रह गया दीज कॉस्ट कर्व्स। कॉस्ट कर्व्स हमने कंस्ट्रक्ट नहीं की है। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट करूं, एवरेज कॉस्ट करूं, मार्जिनल कॉस्ट करूं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट करूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करूं। ये कर्व्स अभी बाकी है। हमें डायग्राम बनाना है, ये बनाना है टेबल, फिर इसको करना है ये क्या कंस्ट्रक्ट करना है। Yes, sir. कर्व्स करने हैं कंस्ट्रक्ट, कर्व्स कंस्ट्रक्ट Yes. हैं। अगर आप खुद भी ये काम कर सकते हो, आप खुद भी ये Try करें। 2-4 डायग्राम्स बनाओ हैं। ये है Yes, sir. क्वांटिटी, ये है टोटल कॉस्ट की नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की, मार्जिनल कॉस्ट की, एवरेज कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमने बनाई है। क्या क्या बनाना है आपको? आपको बनाना है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल। Average fixed cost and average variable. हैं? एक बनानी है एवरेज Yes. कॉस्ट की, मार्जिनल कॉस्ट की, और बनानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, average variable cost. वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं देखूंगा ये। Yes, sir. Yes, sir.